So 26 boys. Okay, boys, I'm sharing screen with you now. Good afternoon, sir. Good afternoon. Which chart we were using for that passage plan? So 5072. 5072. Passage planning. Was it this question? Yes, sir. यही क्वेश्चन था. One more moment. Let me increase the volume. Okay. So your vessel is a VLCC having draft of 16 meters fitted with latest bridge equipment. Plan a safe passage from Kulagran Pilot Station to enter TSS of Poland Sodragrund Lighthouse. Weather expected so and so. Make waypointable as well. Under clearance policy. This was the, like, every company will have this kind of policy. Okay. गुरपिंदर कुछ किया था चार्ट पे? नहीं सर, मैं ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं किया तो करना चाहिए था ना। कभी शिप पे देखा होगा ना सेकंड पैसेज प्लानिंग कर रहा है या नहीं। जी सर, पास्ट मैंने देखा था, मतलब पहले जो सॉल्व क्वेश्चन थे मेरे पास वो मैंने थोड़े से देखे थे, अभी करूँगा सर आज। नहीं नहीं, मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो शिप पे सेकंड ऑफिसर करता था तो आप लोग नहीं देखते थे और कोई लिखा नहीं देखते थे सर। फिर? तो अभी तो इंडिपेंडेंटली करनी पड़ेगी ना जहाज पे। जी सर। क्या हो जाएगा? रमनदीप यस सर. कुछ किया चार्ट पे? लाइनें वाइनें खींची या नहीं? सर लाइनें तो खींचे, वो थोड़ी मार्किंग नहीं करी, जैसे पायलट ऑन बोर्ड वगैरह मार्क नहीं करी. वो तो जरूरत भी नहीं है पायलट ऑन बोर्ड क्या मार्क करना। चलो आई बी अनशेयरिंग द स्क्रीन। सबके पास एक क्वेश्चन है? यस सर. ठीक है, so I'm going to show you the whiteboard and briefly tell you how to go about this.
Okay. Is whiteboard visible? Yes, sir. For example, this is the cost. My ship is somewhere over here. This is the starting position. So starting position would always be waypoint 1. Sorry, waypoint 0. Starting position or the present position would always be waypoint 0. And my destination is somewhere here. That is the destination. So on the chart you plot your starting point and destination. And keeping in mind the ship's draft and underkill clearance policy, on the chart you all know, all of you know the charted depth is given. ठीक है ना? So keeping in mind the charted depth and the draft, you lay courses on the chart. Okay. So if I lay courses on the chart, just for example, like my first course could be like this. Then next course could be like this. And third course could be like this, a straight way to this point. This is just an example. So waypoint 0, this will be waypoint 1. Waypoint 2. Then final waypoint 3. So this track which I am laying on the chart is depending upon the company's policy on underkeel clearance. For example, this course is something like 170. So you write down here 170 through into maybe 30 miles. और आपने ये एरो बनाना. Everything on the chart will be true. Now, there are different techniques which are used on chart for navigation purpose. Same techniques can be used on ACTIS also. ठीक है ना? One of the technique to keep the ship on the track is the parallel indexing. So we have to mark parallel indexing line. चार्ट पे मार्क करनी है. ठीक है ना? नो गो एरियाज मार्क करने हैं. ठीक है. कंटीजेंसी एंकरेज मार्क करने हैं. ठीक है. वे पॉइंट हो ही गए. वे पॉइंट का लेट लॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है चार्ट पे. व्हील ओवर पोजीशन मार्क करनी है. Now, parallel indexing means to keep the ship on the track, we have what we call it a radar technique. Okay, you draw a parallel line to the track on any navigation, radar conspicuous lighthouse or edge. For example, I find this is the most appropriate edge which I could get on the radar screen. तो मैंने क्या किया, इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन खींच दी उसी पॉइंट से, और यहां से मैंने PI लिख दिया. फॉर एग्जाम्पल ये 5 माइल्स है तो मैंने PI 5 माइल्स लिख दिया. हैव यू अंडरस्टूड दिस?
सर ये बताना फिर से। जो हमारा ट्रैक है उससे हम ये डिस्टेंस मेजर करेंगे कि नियरेस्ट जो हमारा लैंड एज है उस ट्रैक के, ये रेडार पे हमारा आ जाएगा ना ये, तो उसी के पहले उतनी डिस्टेंस पे हम रेडार पे ये डाल देंगे। और अगर मेरा जहाज अगर 5 माइल्स है तो जो मैंने 5 माइल्स की जो एक वो ईबीएल डाली है शिफ्ट करके, या यू कैन से नेविगेशन लाइन, तो ये एज उस नेविगेशन लाइन पे होना चाहिए। अगर वो एज अंदर है रेडार पे, इसका मतलब मेरा शिप लैंड के क्लोज है। तो ये नेविगेशन रेडार टेक्निक है। तो जब आप लोग आरओसी करोगे तो वहां पे आप लोग ये प्रैक्टिस करना, या जो भी लेक्चरर होगा उन्होंने बोला सर हमें पीआई करके दिखाओ कैसे करते हैं। चार्ट पे हमने ये पहले इंडेक्सिंग मार्क किया। नेक्स्ट हमारा था नो गो एरियाज। अब जहां पे भी आपको शैलो पैच लग रहे हैं वहां पे आपने नो गो एरिया मार्क करने हैं। हो सकता है सारा तुम्हारा नो गो एरिया हो कि यहाँ जहाज को लेके नहीं जाना, हो सकता है यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो। ऐसे आपने नो गो एरिया मार्क करना। मैंने सिर्फ एक मार्क किया है, बट आपने अपने चार्ट पे ऐसे एरियाज मार्क करने हैं, नो गो एरियाज। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टीजेंसी एंकरेज। एक्चुअली तो हर एक लेग पे कॉन्टीजेंसी एंकरेज बननी चाहिए। कॉन्टीजेंसी एंकरेज में इन केस इफ देयर इज स्टीयरिंग फेलियर और engine failure, then you could go and drop your anchor there if you have time or if you have still movement on the ship. That is the meaning of contingency anchor. So usually you should mark it on the chart. For example, अगर मैं यहाँ पे एक मार्क करूँ contingency anchor, ठीक है ना, कि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ एंकर करूंगा। एंकर का निशान बना दो, कॉन्टीजेंसी एंकरेज सी भी लिख सकते हैं, कॉन्टीजेंसी एंकरेज पूरा लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के वो मेरे पास चार्ट पे स्पेस कितना है। तो यूजली हर एक हमारी लैग होगी ना, एक ये लैग होगी, एक ये लैग होगी, या एक लैग होगी, या एक ये ट्रिप होगी, ऐसे वे पॉइंट टू वे पॉइंट। व्हील पोजीशन यूजली कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कितनी हाउ फार फ्रॉम द वे पॉइंट वी विल स्टार्ट ऑल्टरिंग, ठीक है ना। तो यूजली 0.5 और 1 माइल अवे फ्रॉम द नेक्स्ट ऑल्ट्रेशन यू कैन मार्क लाइक दिस ए डॉटेड लाइन नेगेटिव पैरेलल टू द नेक्स्ट कोर्स, जो हो गया हमारा व्हील ओवर पोजीशन WO। क्या लिखेंगे वहां पे? WO, व्हील ओवर पोजीशन। तो ऐसे यहां पे हो जाएगी व्हील ओवर पोजीशन। इसकी मैं फोटो भेजूंगा अभी। तो ये हमारी होगी व्हील ओवर पोजीशन। सिमिलरली you have to consult your master कि सर abort point कहाँ मार्क करना है। कि there could be a situation whereby suppose you are entering a narrow channel or entering a fairway buoy, कि एक बार अंदर चले गए फेयरवे बुओय में, फिर हम वापस आ नहीं पाएंगे। सपोज पायलट डिले हो गया, बर्थिंग डिले हो गई, तो उस केस में आपको अंदर लेना ही पड़ेगा। सो देयर शुड ऑलवेज बी ए अबॉर्ट पॉइंट। अबॉर्ट पॉइंट और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कुछ भी कह सकते हो। तो हमने अबॉर्ट पॉइंट मार्क कर देना। सो यूजली हम लोग चार्ट पे जो कर रहे हैं, से अबाउट 1.5 to 2 miles away you can mark dotted line and abort point. सर इस डायग्राम को कौन शेप में बना सकते क्या? वे पॉइंट 0 से वे पॉइंट 1 से लेके 2 तक ओनली इतना ही बना के मतलब ये हो जाएगा। तो अब ये रुको और पहले समझ लो, फिर क्वेश्चन पूछना। अबॉर्ट पॉइंट मार्क करना है चार्ट पे, कैसे आ गया?
अब हमारे केस में हम अराउंड 1 I would say 2 miles away from the destination you can mark abort point, but actually when you do on the berth to berth planning, then you will have to actually mark on the chart. चैनल में जाने से पहले 2-3 अबॉर्ट पॉइंट हो सकते हैं, चैनल में घुसने से पहले भी एक अबॉर्ट पॉइंट हो सकता है, बर्थ पे जाने से पहले, उससे पहले टर्निंग सर्कल अगर एक है तो वहां पे एक पॉइंट, अगर बर्थ बाय चांस कुछ इश्यू हो जाता है, कुछ हो जाता है, देन यू शुड टर्न अराउंड एंड गो बैक टू पायलट एरिया और एंकरेज एरिया. So these are the terms you can say which we use on the in the passage planning. Now I am making only one leg here. You will have to mark this course on each leg. For example, ये हमारा हो गया 095 ट्रू लिखना into 21 miles. ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पे भी जो भी होगा ये आपने सारे कोर्सेज ट्रैक पे लिखने हैं. मे बी दिस विल बी 051 into 45 miles. These are the essential markings which we have to do on the chart. Alteration course, like हाँ naturally ये वे पॉइंट है तो यहाँ ऑल्टर करना ही है, बट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऑल्टर कोर्स, ऑल्टर कोर्स, कोई भूल ना जाए. इतना समझ में आया आप लोग को? पहले हम इतना करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. यस सर. इसकी फोटो भेज रहा हूँ अभी मैं. अप्रैल बैच है ना? तो अभी मैंने आप लोग को इसका अब पैरेलल इंडेक्सिंग जो है ना हर एक कोर्स में मार्क करनी है, ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक पे. अब इसकी पैरेलल इंडेक्सिंग तो यहाँ पे मार्क करोगे. पीआई ये मेजर करना है कितना है, से 6 माइल्स, तो ये 6 माइल्स हो गया ना. यहाँ पे 6 माइल लिख सकते हो, यहाँ पे 5 माइल लिख सकते हो, बट ज्यादा नहीं. ऐसे यहाँ पे भी पीआई, यहाँ पे हो सकता है 2 जगह पीआई करनी पड़े, एक यहाँ पे करनी पड़े, एक यहाँ पे करनी पड़े, तो आप एक मार्क करो, कम से कम एक तो मार्क करोगे पीआई पैरेलल इंडेक्स. तो ये हमारा हो गया मे बी 4 माइल्स और 4.5 माइल्स. ओके. I'll be sharing the question once again. क्वेश्चन आ गया वापस स्क्रीन पे विमलेंद्र? जी सर आ गया. अभी नाउ यू आस्क द डाउट्स. क्या डाउट्स आप लोग? बीच में कोई पूछ रहा था. तो विमलेंद्र है ना क्लास में? हाँ सर मैं क्लास. अभी आप चार्ट में भी कुछ मतलब को मुझसे पहले पूछो. विपिन मिश्रा
नहीं सॉरी, विमलेंद्र कोई ना, विपिन है और विनीत है, वो दूसरी क्लास में विमलेंद्र। सर विपिन में हाँ ठीक है। हाँ भाई, somebody was asking question, please ask again when I was drawing on the whiteboard. So if you have understood that much, you can now draw these courses on the chart, and I am sharing one screen. You are supposed to make waypoint table. In the last homework I had told you, you have to make waypoint table according to your company's policy. So, but at least these points should be there in the waypoint table. Can you all see the waypoint table? हाँ जी सर। So waypoint number, starting waypoint number will always be 0. Then position of that waypoint, let know. True course and distance to next waypoint. When I say true course and distance means whatever we have plotted on the chart, there is a true course to be made good. Remember that. Track to follow. Then you can put distance to go to the destination, means of position fixing from waypoint 0 to waypoint 1. तो हम कैसे पोजीशन डालेंगे? दो आपने मेथड लिंक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. Since we are going to be coasting near the coast, primary can be your visual bearing, radar bearing, and secondary can be your GPS or ACDIS. Since if we are doing this passage planning on ACDIS, still your means of position fixing primary has to be radar or visual. Remember that. आप बेयरिंग लोगे, जाके एक्डिस पे भी आप पोजीशन डाल सकते हो. रिमेंबर, एक्डिस पोजीशन जो है वो आपको जीपीएस दे रहा है, लेकिन जो विजुअल है वो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है. पोजीशन प्लॉटिंग इंटरवल और पोजीशन फिक्सिंग इंटरवल डिपेंडिंग ऑन द हाउ फार वी आर फ्रॉम द डेंजर, नियरेस्ट डेंजर, देन यू हैव टू पुट दिस 6 मिनट्स 10 मिनट्स. जितना हम लैंड से ज़्यादा दूर होंगे, डेंजर से ज़्यादा, उतना हमारा इंटरवल ज़्यादा रहेगा. चलो अभी आप लोग कंप्लीट करो waypoint table अपने. Underkill clearance required means as per the company's policy, जो required है वो आपने वैल्यू लिखनी है. 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जो भी है. एक्सपेक्टेड मीन्स जो आपका चार्टेड डेप्थ माइनस द ड्राफ्ट. योर एक्सपेक्टेड शुड ऑलवेज बी मोर देन रिक्वायर्ड. Then only you will be following the company's policy. Engine speed, on what speed would you like the ship to go on that track from waypoint 0 to waypoint 1? ETA next port, sorry, next waypoint. Watch level 1 2 3, and watch level you have to mention in the answer sheet. Watch level 1 means what, watch level 2 means what, watch level 3 means what. You could, it's up to you. Watch level 1 could be only duty officer on the bridge. Watch level 2 could be duty officer and AB. Watch level 3 could be duty officer AB master. Watch level 4 could be pilot also. Watch level 5 भी हो सकता है. तो अकॉर्डिंग टू योर कंपनी नोटेशन, क्या कोड यूज कर रही है कंपनी, उसके बेस पे. सिक्योरिटी लेवल you can put, it's up to you. It is not really necessary to have security level. Remarks, in remarks you have to put okay, if you are departing from berth, then put terminal on which VHF channel, pilot on which VHF channel, how much notice do they need for departure. Or in the other
next rows you could put maybe vessel is crossing some crossing some route, traffic dense, high density area, fishing vessels, or entering TSS, or vessel in the TSS, like this. Remarks can be put. चलो करो इसको कंप्लीट. आई विल बी चेकिंग एवरीबॉडीज पैसेज. तो आप लोग कंप्लीट करो, पहले टेबल बनाओ, फिर एक एक करके सबको फोटो मुझे भेजनी होगी, ठीक है, इंडिविजुअली. If you have any doubt, you can keep asking me. मिनिमम ये फॉर्मेट होना चाहिए आपके जब आंसर शीट में, वे पॉइंट टेबल. इसको नोट डाउन कर लो. अगर आपके कमरे में कोई और भी है एडिशनल इंफॉर्मेशन विच कुड बी हेल्पफुल टू द नेविगेटर, वो भी आप डाल सकते हो, रिमार्क्स में डाल सकते हो, एक और कॉलम बना सकते हो.
हाँ भाई, किसी का हो गया? सर इंजन स्पीड अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं 6 to 10 के बीच में। इंजन स्पीड, हाँ अपने हिसाब से। आप जैसे whenever we are departing, for example departing, क्लोजिंग सर जैसे 8 10 किलोमीटर। हाँ सुनो, जैसे हम बर्थ, अगर हम ऐसे एग्जांपल, if we are departing from Berth, the speed could be around 4 to 5 knots, and then as soon Yes, as sir. we come in the channel, the speed could be around 8 to 9 knots. ठीक है ना? Then as soon as we come at the pilot station, drop pilot station, then speed could be say 8 knots and then increase to 12 knots or 13 knots, जो भी हमारे जहाज की सर्विस स्पीड है, like this. Okay. Prince, how much have you done? Prince Kumar, is he around?
अरे प्रिंस आया कि नहीं? उसका कभी जवाब आता नहीं वैसे, जब भी बुलाओ उसको। यस सर। कहाँ तक पहुँचे? सर कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तुम्हारी कंपनी का तुम्हें पता है वे पॉइंट टेबल कैसी थी? ये सर लगभग सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कौन सी कंपनी है आपकी? सर कंपनी तो मेरी डिफरेंट है। मैनिंग कंपनी मेरी जो एजेंसी है यहाँ पे एसबीएस है। कोई बात नहीं, कोई तो शिपिंग कंपनी होगी ना जो। सर मैं बता तो रहा हूँ, शिपिंग एजेंसी जो है मेरी इंडिया में वो एसबीएस है, और बाकी मैंने मिकलिन ऑफशोर में सेल करा है सर। अच्छा, सर सुमेश यस सर। कितना हो गया? Sumesh, how much have you completed?
Neeraj, how much you have done? कर रहा हूँ सर, पोजीशन वगैरह निकाल के लिख रहा हूँ। केशव अग्रवाल, यस सर कर रहा। ये बताओ केशव, मैंने होमवर्क दिया तो आपने चार्ट पे ट्रैक भी नहीं डाले थे? नो सर। क्यों? सर उसे समझ ही नहीं आता करना क्या है। तो मतलब क्या हुआ, वो 18 महीने की जहाज पे ट्रेनिंग हुई, उसका क्या हुआ फिर? बेकार गई? सर इतना नहीं कराया था। चलो ओके बॉयज, आप लोग चाय वाय पी लो बीच में, बट अदरवाइज ये कंप्लीट करो। टेक ए ब्रेक।